नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर मॉडल सोसाइटी के विचारों को त्यागे, नागरिक कर्मचारियों को सीधे भुगतान लागू करें, नागन्ना गौड़ा ने कहा। जिले में गारंटी परियोजनाओं को ठीक से लागू करने के निर्देश अमृतराज चिंकोड़े ने दिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इस्तीफे की अफवाहों को किया खारिज, कहा कुछ गलत नहीं किया। रेल मंत्री वैष्णव ने घोषणा की कि कर्नाटक को जल्द ही रैपिड ट्रेनें दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पंजाब में मारे छापे, 10 करोड़ की कोकीन की बरामद, 5,000 करोड़ के ड्रग्स मामले से जुड़ा तार। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ब्रजभूषण सिंह का आया बयान, हरियाणा को लेकर कही ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य निगम, नगर सभा, नगर पालिका, पट्टन पंचायत आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एमबी नागन्ना गौड़ा ने मांग की है कि 2006 में लागू बीदर मॉडल सोसाइटी विचार को छोड़ दिया जाना चाहिए और वित्त में नागरिक कर्मचारियों को सीधे भुगतान फाइलें दी जानी चाहिए। रविवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री संतोष लाड का बीदर मॉडल सोसाइटी अवधारणा को मैसूर, तुमकुर और धारवाड़ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का आदेश एक असंवैधानिक कदम है। उन्होंने कहा कि जब बीदर सोसाइटी मॉडल योजना पहले ही विफल हो चुकी है तो राज्य सरकार का इसे पूरे राज्य में विस्तारित करने का कदम शर्मनाक है। 2017 और 2022 में राज्य में कुल 24,500 नागरिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल, समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों में से सेवा दे रहे 1,50,000 से अधिक निकाय कर्मियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को 5-6 माह से वेतन नहीं मिला है। बीदर के अलावा अन्य जिलों में भी एनजीओ द्वारा भर्ती की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस अवैज्ञानिक उपाय को छोड़कर सीधे भुगतान करे तो सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। 7 अगस्त सुबह 10 बजे से बीदर नगर परिषद से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನೌಕರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಎಸ್ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವೋ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೊರತು ತಾನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾವ ತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೀದರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಡುವಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೇ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. PF ESI ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂಥ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೀದರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬೀದರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ನೇರ ಪಾವತಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ GST ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳೋ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಮ್ಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ 26% ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತೆ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಾವು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾರ್ತಿ कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तालुका स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक बीदर तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में आयोजित की गई। बैठक में गारंटी योजना बीदर जिले के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े ने कहा कि बीदर जिला शहीदों की भूमि है और यह एक पवित्र भूमि है जिसने दुनिया को दासोहा प्रणाली दी। इसीलिए अन्नभाग्य सहित सभी परियोजनाओं को इस जिले में ठीक से लागू किया जाना चाहिए। गारंटी योजना के बीदर तालुका अध्यक्ष मोहम्मद रियाज ने कहा कि गारंटी योजनाओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से आम लोगों की आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी। बीदर तालुका पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने कहा कि कई लोग इन योजनाओं से वंचित हैं क्योंकि उन्होंने NPCI बैंक खाता आधार लिंकिंग नहीं किया है, लेकिन सभी को जितना संभव हो सके आधार लिंक करना चाहिए। कार्यक्रम में गारंटी योजना के उपाध्यक्ष राहुल मडिके और अन्य उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोहराया कि वह मूड़ा विवाद के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। रायचूर जिले के मानवी में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात महज अटकलें हैं। उन्होंने कहा केवल भाजपा नेता ही मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। सीएम ने कहा अगर मेरे मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी या कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिल्ली में AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे या अगर राहुल गांधी से मिलते हैं तो मुझे हटाए जाने की अटकलें शुरू हो जाती हैं। जब वरिष्ठ मंत्री मिलते हैं तो मेरे पद छोड़ने की अफवाहें भी शुरू हो जाती हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि वह भाजपा के झूठे आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धरामैया ने दोहराया कि उन्हें पार्टी हाईकमान और उनके मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा जब मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है तो मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। यहां तक कि जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने भी कहा है कि वह मेरा इस्तीफा नहीं मांगेंगे। यहां तक कि पूर्व मंत्री GT देवेगौड़ा भी मेरे समर्थन में सामने आए हैं। यह केवल भाजपा ही है जो चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करते हुए घोषणा की कि शहर दर शहर यात्रा में क्रांति लाने के लिए डिजाइन की गई रैपिड ट्रेनें जल्द ही कर्नाटक में आएंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर क्षेत्र जैसे शहर जिसकी दूरी रैपिड रेल के लिए आदर्श है 200 किलोमीटर से कम है, इस नई सेवा से बहुत लाभान्वित होंगे। वैष्णव ने कहा कि पहली 2 रैपिड ट्रेनें पहले ही निर्मित हो चुकी हैं। दिल्ली से मेरठ और अहमदाबाद से भुज तक
और 1 साल के सफल परीक्षण के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु एक चुंबकीय शहर है जो तुमकुर और मैसूर जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है और रैपिड ट्रेनें इन शहरों को उच्च आवृत्ति पर जोड़ेंगी, जिससे यात्रा में बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे लाइन को एयरपोर्ट टर्मिनलों के करीब ले जाने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने की योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन को प्रस्थान और आगमन टर्मिनलों के जितना संभव हो सके उतना करीब लाने के लिए काम कर रहे हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 8 क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों का व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। बीबीएमपी कल्याण विभाग के विशेष आयुक्त सुरलकर विकास किशोर ने कहा कि कल्याण विभाग इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीएमपी के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए 600 से अधिक गणनाकर्ताओं को तैनात किया गया है। किशोर ने कहा कि सर्वेक्षण के माध्यम से अब तक लगभग 1800 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है। सर्वेक्षण के आधार पर पात्र स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सर्वेक्षण स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट ट्रेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 और कर्नाटका स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण स्ट्रीट ट्रेंडिंग का विनियमन और लाइसेंसिंग योजना 2020 के अनुसार किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान विक्रेताओं को अपने साथ विभिन्न दस्तावेज लाने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, परिवार का राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों की जानकारी और स्व घोषणा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी शामिल होगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में 5000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी मामले के तार पंजाब से जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब में छापे मारे। छापे में पुलिस ने 10 करोड़ कीमत की कोकीन बरामद की है और एक फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त किया। जानकारी के मुताबिक छापे की यह कार्रवाई अमृतसर के नेपाल गांव में की गई थी। स्पेशल सेल के अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार जितेंद्र उर्फ जस्सी निशानदेही पर 10 करोड़ की कोकीन बरामद की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पकड़े 5600 करोड़ के ड्रग्स के तार दुबई से भी जुड़े हैं। दुबई में मौजूद भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया का नाम इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र बसोया, उसके बेटे और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। बेटे पर सिंडिकेट के लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बसोया ड्रग्स मामले में भारत से पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि जमानत मिलने के बाद वह दुबई शिफ्ट हो गया और इंटरनेशनल ड्रग्स को कार्टेल का बड़ा माफिया बन गया है। स्पेशल सेल की जांच में यह बात सामने आई है कि ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल और वीरेंद्र बसोया पुराने दोस्त हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शहर में नशे की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी थी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 560 किलो से ज्यादा कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मोरिजुआना की जब्ती की गई है। इस नशे की खेप की अनुमानित कीमत 5620 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान दिल्ली निवासी तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले दोनों राज्यों को लेकर एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों को नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच दोनों राज्यों के नतीजों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूछा गया कि क्या लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, जबकि हरियाणा को लेकर कहा कि यहां पर बोलना मना है। बता दें कि बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर निशाना साधा।
पूर्व WFI प्रमुख ने कहा कि विनेश और बजरंग ने कुश्ती में नाम कमाया, उसी से मशहूर हुए, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल होने से उनका नाम मिट जाएगा। इसके साथ ही ब्रजभूषण ने विनेश पर कुश्तियों को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विनेश और बजरंग ने कुश्ती के माहौल को खराब कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जा रहे हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी आप की ओर से छत्रपाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाई गई। इस जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, साथ ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हुई। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने LG डाटा एंट्री करने वाले 500 लोगों को निकाल दिया है। वृद्ध लोगों की पेंशन रोक भी इनको हाई लगेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा केजरीवाल आ गया है, सबकी तनख्वाह दिलाऊंगा, सबके रुके काम करवाऊंगा। कोई मंत्री बनने जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, मगर कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं थे। कल इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में था। पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महंत यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। थाने में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले ही इस मामले को लेकर कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 सितंबर को हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के अध्यक्ष की शिकायत पर थाने में मुंब्रा पुलिस ने 3 अक्टूबर को महंत के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। मुंब्रा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्य करना, 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली कार्यवाही, 299 किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, और धारा 302 किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्द बोलना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के तुम्बा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सोन नदी में नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए, जिसमें से 5 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। दरअसल रविवार की सुबह कृष्णा गोंड के 4 बच्चे और उसकी बहन की एक बच्ची सहित 7 बच्चे नहाने के लिए गए थे। सोन नदी में गए थे। नहाते समय अचानक सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने 5 बच्चों के शव निकाल लिए, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शी गोलू कुमार ने बताया कि हम लोग सोन नदी में नहाने गए थे। नहाते समय एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए हम सभी पानी में कूद गए, लेकिन खुद भी डूबने लगे। किसी तरह हम बचकर बाहर निकले, लेकिन 5 बच्चे नहीं बच सके। वही हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। रोहतास के थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलने पर वह तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 5 बच्चों के शव बरामद किए। 2 बच्चों की तलाश में गोताखोर और SDRF की टीम जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों की उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच थी। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम अस्पताल भेज दिया गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनी हैकरों ने अमेरिकी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स नेटवर्क को हैक करके हड़कंप मचा दिया है। संघीय सरकार इससे प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल अदालत द्वारा अधिकृत वायर टैपिंग के लिए करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार चीन ने अमेरिका अदालत के इस पूरे वायर टैप सिस्टम को ही हैक कर लिया है। WSJ के इस मामले से जुड़े कई लोगों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की वेरिजोन कम्युनिकेशन, AT&T और ल्यूमेन टेक्नोलॉजी उन टेलीकॉम नेटवर्किंग कंपनियों में शामिल है जिनमें हाल ही में घुसपैठ करने और सेंधामारी करने का पता चला।
अखबार ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हैकरों ने अमेरिकी अदालत द्वारा अधिकृत अनुरोधों के साथ सहयोग करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधारभूत नेटवर्क तक महीनों से पहुंच बनाई रखी थी। इसके अलावा हैकरों ने इंटरनेट ट्रैफिक के अन्य हिस्सों तक भी पकड़ बना ली थी। इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी बेरूत पर एक और भीषण हवाई हमला किया। हमले की तस्वीरें और वीडियो देखकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। रॉयटर्स के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में शनिवार देर रात से रविवार तक बड़े पैमाने पर लगातार हमले हुए। इससे शहर भर में धमाके सुनाई देते रहे और कई किलोमीटर दूर से लगभग 30 मिनट तक आसमान में लाल और सफेद रंग की चमक दिखाई दी। आसमान में आग की लपटें और काला धुआं भी देखा गया। इजरायली सेना ने अपने अभियान के दौरान 440 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। हमला इतना अधिक घातक था कि पूरा बेरूत दहल गया। इस हमले में सैकड़ों इमारतें ताश के पत्तों की तरह एक साथ बिखर गई। हालांकि हमले के दौरान दोनों होने वाली मौतों के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है, मगर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले बेरूत उपनगरों पर इजरायल की इस बमबारी से भारी नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही इजरायल सेना ने हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह को मार डाला था। इसके बाद हाशिफ सफीउद्दीन ने नया हिजबुल्लाह चीफ बना था। संभवतः नसरुल्लाह के इस उत्तराधिकारी की मौत हो गई है, क्योंकि कई दिनों पहले आईडीएफ ने सफीउद्दीन के मारे जाने की आशंका जाहिर की थी। तब से वह किसी के संपर्क में नहीं है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर मॉडल सोसाइटी के विचारों को त्यागे, नागरिक कर्मचारियों को सीधे भुगतान लागू करें, नागन्ना गौड़ा ने कहा। जिले में गारंटी परियोजनाओं को ठीक से लागू करने के निर्देश चंद्रराज चिंगोड़े ने दिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इस्तीफे की अफवाहों को किया खारिज, कहा कुछ गलत नहीं किया। रेल मंत्री वैष्णव ने घोषणा की कि कर्नाटक को जल्द ही रैपिड ट्रेनें मिलेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पंजाब में मारे छापे, 10 करोड़ की कोकीन की बरामद, 5000 करोड़ के ड्रग्स मामले से जुड़ा तार। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ब्रजभूषण सिंह का आया बयान, हरियाणा को लेकर कही बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।